Hello students, welcome again my next class, Measure of Center Tendency. Last time I discussed a lot of things about the center tendency we again revise all these things. Last time I discussed what is the center tendency and how to measure the center tendency through a three types, mean, median, mode. And I also discussed the type of mean is the first is arithmetic mean in the uh, last class and define all the three methods. First is the direct, second is shortcut method, and third is a step deviation method. And find how the incontinuous data, discontinued data convert to a continuous data form. Now, the same part of mean, we have already a three part is there: arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. Okay, the arithmetic mean is complete now. Now, the next part is geometric mean and harmonic mean. As like the same, mean is the center value of the data sets. So geometric mean and a harmonic mean is the same type of the arithmetic mean, but the method of identifying the mean is totally different. So starting of the geometric mean is the average value of mean which signify the central tendency of the set of number by finding the product of their values. Basically, we multiply the numbers all together and take out the nth root of the multiply number where n is the total number of values. Okay, just one thing is the difference between a arithmetic and geometric mean to identify the mid value. In arithmetic mean, we sum all the values and divide by the number of observation. But in geometric mean, we what we do, we multiply all the numbers together and then the numbers of observations root is identified as a mean. So like that, geometric means the also we say nth root of the product of n numbers. N is a term of 1 2 3 and a 4 5. How many numbers is हम in a finite term में भी define कर सकते हैं, या हम ज्योमेट्रिक मीन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एन रूट a.1 a1.a2.a3 और an तक इन द डिफाइन ऑफ द जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो a1 a2 a3 हैं, और उन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और क्योंकि नंबर्स n रूट तक है तो हम उसको मतलब नंबर्स जो हैं वो n टर्म तक हैं इन अ फाइनाइट टर्म, तो हम उसी का रूट निकाल लें। तो दैट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। एज अ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट में अभी ऑलरेडी मेंशन दिया, थ्री देयर इज अ थ्री नंबर्स और उसके बीच में हमें उसका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो व्हाट वी डू, फर्स्ट जो भी नंबर्स हैं उनको हम उसका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, इनटू कर लेंगे, एंड हाउ मेनी ऑफ नंबर्स दिए, थ्री नंबर्स, तो हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो 3.30 है। तो इन दिस टर्म जब अगर हमारे थ्री नंबर है तो हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, अगर हमारे दो नंबर होते तो स्क्वायर रूट निकालते। इसी तरह अगर फिफ्थ फाइव नंबर है तो और फिफ्थ रूट निकालेंगे। अगर 12 नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं देन हमें जो रूट निकालना होगा वो 12 रूट। इसी तरह 99 का भी रूट निकालने होंगे। तो ये यहाँ पे इट इज क्लियरली मेंशन दैट कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन and the root of the product of that observations. Okay, so same in another example is a 4 8.39 and 17 is there is a one four numbers is there. So four number यहाँ पे 0.3 है, that is not a 0.3, that is a 3 in the term है। तो 8 4 8,3,9 एंड 17। तो यहाँ पे हमें पांच नंबर है तो ऑल द फाइव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन फिफ्थ रूट निकालेंगे तो जो वैल्यू आ रही है हमारी वो 6.81 आ रही है। तो इज द सेम टाइप ऑफ द एग्जांपल, बट कभी कभी क्या होता है, देयर इज वेरी लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, अगर पांच नंबर तीन नंबर है बट यही नंबर्स हमारे 10 हो 20s हो, तो दैट इज वेरी टिपिकल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स। तो उसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम हम जो भी हमारा एन रूट ऑफ द प्रोडक्ट होता है उसको हम लॉग के थ्रू सॉल्व करते हैं। इट इज वेरी सिंपली टू आइडेंटिफाई द हाउ द मल्टीपल वैल्यूज इज कन्वर्टेड इन द टर्म ऑफ द लॉग। ओके, सो हम जैसे यहाँ पे जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है दैट इज द nth रूट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हमने यहाँ पे वही चीज देखी है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू nth रूट
इज x1 s2 s3 इज ऑब्जर्वेशन इज देयर। तो हमने बोथ साइड में क्या किया है, log ले लिया है। तो log इन द साइड, इसको हम जो रूट को हम कह सकते हैं 1/n लिख सकते हैं। तो log में हमारा इस साइड में log ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा इक्वल टू 1/n, और जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं दैट इज को हमको प्लस कर लेते हैं। तो log x1 प्लस log x2 log xn तक जाएगा। तो जब इसको देखेंगे तो दैट इज सिग्मा log x, तो हमने इसको सिग्मा log x दिखा दिया और अपॉन n हो गया। तो ये log जब लेफ्ट टू राइट जाएगा दैट इज कन्वर्ट टू एंटी लॉग। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन द टर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में, तो वो हम एंटी लॉग या लॉग के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे एंटी लॉग इज सिग्मा log x अपॉन n। In a term of the discrete series when the frequency is given with a observation, तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इसका इंटू कर लेते हैं हम log x के साथ। तो सिग्मा एफ log x अपॉन एन हो जाएगा। एन यहाँ पे सिग्मा एफ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी इन द टर्म ऑफ द रिपीटिशन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, तो हम यहाँ पे जो भी टोटल निकाल लेते हैं वो हमारा सिग्मा एफ होता है। इन द टर्म ऑफ द केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं, जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज होता है उसमें हम कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टर्म्स हमारा डिफाइन होता है उसमें हमारा क्या होता है कि कंटिन्यूअस सीरीज में जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है वो इंटरवल के टर्म में दे रखी होती हैं। तो इंटरवल के टर्म में जब भी ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है तो दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा एफ log m अपॉन n। m इज रिप्रेजेंट ऑफ द मिड वैल्यू ऑफ दैट सीरीज। कंटिन्यूअस में जो भी मिड वैल्यू होती है उसका हम log निकालते हैं, और n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा एफ को, तो सिग्मा एफ log m अपॉन सिग्मा एफ लिख सकते हैं। तो एंटी लॉग इन द टर्म दिखा सकते हैं। इसके समझाने के लिए आगे एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल इज दियर। तो कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा है, जैसे 101.5 है, 102.7 है, 103 है, 104.5, 106.2 है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक मीन। सो हम इसको log x के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। तो log x में क्या होता है, जब इसकी x जैसे हमें वैल्यू दे रखी है तो हमें log निकालना आना चाहिए थ्रू अ टेबल के फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे 101.5 है, जैसा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 101.5 मतलब डेसिमल के पहले आपके 3 नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद आपका 1 नंबर है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि डेसिमल से पहले कितने नंबर है, डेसिमल से बिफोर कितने नंबर। तो यहाँ 3 नंबर्स हैं, तो 3 में से 1 माइनस करते हैं, दैट इज टर्म इन 2। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगता है। तो सेम यहाँ पे 3 नंबर के बाद ही है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट इसलिए लिखा गया है। अब जो इसके जो लॉग की वैल्यू है वो कैसे निकालती है, जैसे यहाँ पे क्योंकि लॉग में जो लॉग टेबल होती है वो हमारी 10 to 99 के बीच में होती है। 3 नंबर का कोई नहीं होता ना, सिंगल डिजिट का कोई होता है। तो जो 10 है हमारा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो शुरुआत के 2 वर्ड्स होते हैं 10, उसके बाद हम 1 पे देखते हैं, देन 5 पे देखते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक लॉग टेबल दिखा रहा हूँ। इस लॉग टेबल में देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये लॉग टेबल है। क्योंकि 101.5 था, 101.5 था, तो हम 10 के 1 पे देखेंगे तो दैट इज वैल्यू 0043। क्योंकि 101.5 था, तो क्योंकि 2 ही डिजिट का होता है तो पहले सब 101 है, तो 10 से 10 के 1 पे देखेंगे तो दैट इज अ वैल्यू 0053। और उसके बाद जो थर्ड टर्म है वो 5 है, तो 5 में जाते हैं सीधे, वैल्यू ये हम देख रहे हैं 21 है। जो 5 के नीचे आपको इसी 10 के पहले 1 पे देखेंगे और 10 के सेम इज 5 पे देखेंगे तो 21 वैल्यू है। अगर 43 और 21 को ऐड कर दें तो दैट इज 64 वैल्यू आएगी। और 64 वैल्यू जैसे ही आती है, आप ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, हमने ली है 2.0064। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि 2 के बाद तो पॉइंट लगेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0043 है, और 21 को प्लस किया तो 0064 आ रही है। तो इस तरह से हम लॉग टेबल देखते हैं। ठीक है, अगेन दूसरी तरह से क्वेश्चन देख लेते हैं। 102.7 है, 102.7 का मतलब है 10 के 2 पे देखेंगे, देन 7 पे देखेंगे। तो 10 के सेम इज द कॉन्सेप्ट, 10 के 2 पे देख ले रहे हैं, तो 10 के 2 पे 0086 है। ओके, 0086 है, एंड 7 पे देख लेंगे दैट इज 9 है, 29 है। ओके, 7 पे देख लें कौन इसमें वैल्यू क्या थी, 10 के 2 पे फिर 7 पे। तो 10 के 2 पे हमने देख लिया, 10 के 2 पे आपकी वैल्यू कितनी है, 0086 है, और 7 पे आपकी 29 है। तो 29 और 86 को अगर प्लस कर लेंगे तो ये मुझे लग रहा है ये 0.115 समथिंग आएगा, बट इज द टर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 0.0016 हम लिख सकते हैं।
इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटर के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मे बी पॉसिबली सो कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, इसी तरह 10 के 3 पे देखेंगे तो 10 के 3 पे जैसे यहाँ पे 103.0 है तो 2 पॉइंट है। अब 10 के आप 3 पे देखेंगे जो वैल्यू है वो 10 के 3 पे आपको देखने को मिलेगी। 10 के 3 पे आपको कितनी वैल्यू है, 0128 है। तो हमने पॉइंट लगाने के बाद जो वैल्यू लिखी है हमने वो 0128 है। ओके, इसी तरह सारे लॉग वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, उसके बाद सिग्मा एफ लॉग एक्स कर लेते हैं। सिग्मा एफ लॉग करने में आपको 10.076 वैल्यू मिलती है। तो ज्योमेट्रिक मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आप काउंट कर लें, दैट इज अ 5, तो 5 को डिवाइड करेंगे तो 2.0152 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एंटी लॉग हमें निकालना है 2.502, तो इसके लिए हमें एंटी लॉग टेबल देखनी होगी। एंटी लॉग टेबल में हमेशा क्या होता है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज पे ही हम देखते हैं, मतलब यहाँ 2 को हम नहीं देखेंगे, डेसिमल के बिफोर वाला पॉइंट नहीं देखते हैं, डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स देखते हैं। तो 2 हम छोड़ देंगे, हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना है, क्योंकि ये भी 2 के टर्म में ही होता है, 2 डिजिट्स के टर्म में होता है। तो 01 का हम 5 पे देखेंगे, देन 2 पे देखेंगे। तो सेम मैं आपको एंटी लॉग की भी टेबल दिखाता हूँ, दैट इज अ लॉग टेबल। दिस वन इज अ एंटी लॉग टेबल। तो यहाँ पे एंटी लॉग टेबल पे क्या है, 0 के 1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू थी, यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है 0.015 और 2, तो 0.01 के पहले 5 पे देख लेते हैं। 0.01 ये रहा, और इसके 5 पे आप वैल्यू देखेंगे तो 1035 है, 0.0152 था। तो 5 पे देखा 1035 है, और 2 पे देखा आपने 0 है, तो 2 पे 0 है और ये 1035 है, तो जोड़ दिया 1035 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 1035 आ गई। ठीक है, 1035 है। अब डेसिमल क्या होता है, जो भी हमारा एंटी लॉग से डेसिमल से पहले का नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस करते हैं तो एंटी लॉग में वो चीज़ प्लस हो जाती है। जब लॉग निकालते हैं तो माइनस करते हैं, जब एंटी लॉग निकालते हैं तो जो चीज़ प्लस हो जाती है। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम डेसिमल जो लगाएंगे वो 3 के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे 103 पॉइंट, अगर यहाँ 1 होता तो हम 1 को 1 से प्लस करते, 2 करते, तो डेसिमल कहाँ लगता है, 2 के बाद लगता। लेकिन यहाँ पे 2 है, तो दैट्स वाई हम जो डेसिमल लगा रहे हैं वो किसके बाद लगा रहे हैं, 3 नंबर के बाद लगाएंगे, तो 1035, तो 0.5 आ गया। ठीक है, तो दैट इज आंसर। हमने लॉग की टेबल निकाला, होपफुली आपको लॉग का टेबल समझ में आया होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि लॉग्स हमारे निकलने चाहिए, लॉग की वैल्यूज हमें आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन आया है 103.5 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिस्क्रीट सीरीज का, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है एंड ऑब्जर्वेशन के साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। So when observation is also given and a frequency is given, तो that is a discrete series form। तो हमने क्या करते हैं कि x की अगर वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू को हम log की टेबल निकाल लेते हैं, that is a log x। तो सेम यहाँ पे 8 है, तो 8 का क्योंकि 2 डिजिट्स का होता है तो 8 इज नॉट भी कोई नंबर नहीं होता लॉग टेबल में, तो हम 80 का निकाल लेते हैं। 80 की वैल्यू आपको मैं इसमें भी दिखाना चाहूंगा कि 80 की वैल्यू जो होगी वो कैसे निकालेंगे, आपको सेम लॉग टेबल में दिखाता हूँ। 80 पे ये लॉग की टेबल है आपकी, दैट इज अ लॉग टेबल। तो यहाँ पे 80 पे देखिए, 80 का क्योंकि 8 का वहाँ पे वैल्यू है तो 8 तो होगा नहीं आपका, तो 80 पे हम क्या देखेंगे, 0 पे देखेंगे। 80 के 0 पे देखेंगे 9031। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी, वो मैंने 9031 रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट था, 1 डिजिट है जिसके बाद डेसिमल होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो एक डिजिट के बाद ही होता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 से 1 माइनस किया, 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे 0 आया है, तो 0.9031। अब यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए 2 - 1 हो जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 में से 1 है 1। और आपके डेसिमल के पॉइंट 25 के 0 पे निकाल लिया, 17 के 0 पे निकाल लिया, 13 के 0 पे निकाल लिया, तो ये सब वैल्यू सेम है। तो एफ का सीधे लॉग एक्स से इंटू कर देते हैं, तो एफ लॉग एक्स आ जाएगा। एफ लॉग एक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा एफ लॉग एक्स की वैल्यू आपको वैल्यू मिल जा रही है। और सिंपल सा एक फॉर्मूला आपका एंटी लॉग इक्वल टू सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर देंगे, डिवाइड करेंगे, वैल्यू आपकी 1.18 आ रही है। तो पॉइंट से पहले का हम देखते नहीं, 0.18 के 4 और 6 पे देखेंगे तो आपको ये वैल्यू वैल्यू मिल जाएगी 153। तो 50 यहाँ पे 1 है तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा तो 15.3। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग ना इन द टर्म ऑफ, इसके अलावा कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं, मिड वैल्यूज को निकालते हैं और एफ का मिड वैल्यू से लॉग एम निकालते हैं, देन मिड वैल्यू से करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन भी इसमें मैं हो सकता है आगे सॉल्व करूँ, बट
जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे फाइंड द टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज अ 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज अ 8। सो फाइंड टू नंबर, जो दो नंबर का हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की बात करें वो दो नंबर हैं कौन से। तो जब भी अरिथमेटिक मीन की बात करी जाएगी दैट इज अ मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज अ 10। और जब भी दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन की बात करी जाएगी दैट इज अ रूट। दो नंबर है तो दो नंबर का रूट स्क्वायर रूट ही होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई इजकल टू 8 है, तो ये रूट इधर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, एक्स प्लस वाई 20 हो जाएगा। तो वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं, जिसको हम एक्स वाई इजकल टू 64 में पुट कर देते हैं। तो वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने 20 माइनस एक्स रख ली और 64 हो गया। तो एक्स का 20 से इंटू किया, 20x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 64। हम 64 को इधर ले आते हैं, दैट इज अ माइनस टर्म, और हमने माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, 20x माइनस में हो जाएगा, ऑलरेडी 64 माइनस में था वो प्लस में आ गया। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मुलेज है, मैथमेटिकल माइनस प्लस करना होता है, वो बहुत इजी होता है, इसमें इतना नहीं हाउ टू चेंज कैसे होता है ये थोड़ा सा समझने की बात है। वरना यहाँ पे इजीली इन द टर्म, यहाँ पे सिर्फ आपको लेफ्ट में जब भी जा रहा है, जैसे यहाँ पे आपका 64 का राइट से लेफ्ट में जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इन द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू यहाँ से भी ले जा सकते हैं, जैसे 64 यहाँ पे है तो माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले गए तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 20x माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है ये 64 तो इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो यही हम कर रहे हैं। तो अब इसका ये आपका क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64। इसके बाद क्या होता है, हम जब भी हमारा इक्वेशन इन द स्क्वायर के टर्म में होता है, एक इक्वेशन के टर्म में होता है, तो हम इक्वेशन में क्या होता है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऐसी वैल्यू। तो यहाँ 20x है, 64 में आपको दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे हमें 64 मिले। तो 16 4 जो 64 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 20x में क्या होगा, 16x को प्लस करेंगे 4x से तो 20x मिल सकता है, इसलिए दोनों माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ 4 इज कॉमन है तो 4x माइनस 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन मिल गए, x माइनस 16 और x माइनस 4। तो x की वैल्यू 4 और 16 हो गई। जब अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 16 मिलेगी, जब 16 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। दैट सो हमारा ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारे जो दो नंबर्स होंगे वो 4 और 16 होंगे, या 16 या 4 होंगे। तो ये एक इस तरह के क्वेश्चन होता है जो हमसे पूछा जाता है। कभी कभी मिस्टेक वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज आल्सो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में एकदम पूछा जाता है कि जैसे किसी दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आपको दे दिया गया और बाय मिस्टेक क्या है, उसको फिगर जो हमारा था वो 5 की जगह पे 3 रख लिया गया, तो वो फाइंड द करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या होता है कि जैसे दो नंबर्स का हमारा तो स्क्वायर रूट ऑफ टू नंबर्स हम ए भी मान लेते, तो स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारा मीन है वो 15 है, तो स्क्वायर रूट आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनटू की बात हो रही है, अगर हम एक नंबर कोई भी मान लें जिसको हमने क्या लिया लिया है 3 ले लिया है, हमने 5 ले लिया है और उसकी जगह पे हमें 3 रखना है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 3 हमारा इंटू हो जाएगा, तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी वो 135 मिलेगी। दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए बी। ठीक है, देखिए जो हमारा गलत है उसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इनटू से हटता कैसे, डिवाइड से हटेगा, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, और जो हमारा सही है उसको इनटू कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 135 हमें वैल्यू मिल जाएगी, और जब करेक्ट जमीन मीन की बात करेंगे तो रूट ऑफ टू नंबर्स में यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी जो होगी करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो 11.619 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फोर वैल्यूज वाज कैलकुलेटेड एज अ 16, इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट one of the values was recorded wrongly as 32 when in fact it is was 162, calculate correct geometric mean। अब इसमें बोला गया है कि 16 आपके फोर वैल्यूज हैं जिसका ज्योमेट्रिक मीन 16 कैलकुलेट किया गया है, लेकिन बाद में ये पता चला है कि 32 की जगह पे हमने 162 ले लिया, तो आपको उसका करेक्ट मीन निकालना है। तो हम मान लेते हैं जो आपके फोर नंबर्स हैं, क्यों फोर वैल्यूज तो हमें दे नहीं रखी, तो फोर वैल्यूज हमारी क्या होंगी, x1 x2 x3 x4 होंगी। ओके, तो यहाँ पे हमने मान लिया तो x4 होंगी, और इसका जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है वो 16 दे रखा है। तो ज्योमेट्रिक मीन 16 दे रखा है, तो इसका मतलब है इसका फोर्थ रूट निकला होगा, तो इंटू सबका मल्टी करके फोर्थ रूट निकालेंगे, वही फोर्थ रूट आपका 16 की पावर 4 हो जाएगा, तो 16 की पावर 4 आपका
65536 होता है। तो एक जो फॉर्मूला होता है हमारा करेक्ट प्रोडक्ट का वो होता है इज 6536 जो हमारे टोटल प्रोडक्ट वैल्यू निकली है इनटू करेक्ट आइटम अपॉन रॉन्ग आइटम। जो रॉन्ग आइटम होता है उसको डिवाइड करते हैं, जो करेक्ट आइटम होता है उसको इनटू करते हैं। तो जो रॉन्ग था हमारा वो 32 था, 32 था, और करेक्ट आइटम हमारा क्या है जो 162 है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक करेक्ट वैल्यू आ गई 33,776। तो इसका फोर्थ रूट निकालेंगे, दैट इज 24, दैट इज करेक्ट मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज फोर वैल्यूज। तो इस तरह से भी सॉल्व करते हैं हम लोग। दैट इज द कॉम्पिटिशन लेवल क्वेश्चंस होते हैं जो ज्योमेट्रिक मीन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। जस्ट लाइक अर्थमेटिक में जैसे हम लोग वेटेड मीन की बात करते थे वैसे ही यहाँ पे वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की भी बात होगी। सो ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या कहते हैं, दैट गिवन द वेटेज वी आल्सो आइडेंटिफाई, वी हियर आइडेंटिफाई दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नॉट बी सेम, दैट इज अ डिफरेंट इन टर्म ऑफ वेटेज। तो हम यहाँ पे जो W होता है इन द टर्म ऑफ वेटेज के टर्म में लेते हैं। तो वेटेज अगर है असाइन किया गया है डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को, तो यहाँ W1 W2 इज अ वेटेज एंड X1 S2 Xn तक हमारा जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। हम यहाँ पे XW1 S2 W2 Xn Wn करते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होगा इन द वेटेज सम में वो एंटी लॉग सिग्मा W log X अपॉन सिग्मा W होगा। एन की जो वैल्यू है दैट इज अ सिग्मा W। जैसे सेम लाइक दैट फ्रीक्वेंसी हम जैसे वहाँ पे F का यूज करते हैं यहाँ W का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाता है बस यहाँ पे आपका सिग्मा W log X अपॉन सिग्मा W हो जाता है, दैट इज एंटी लॉग इन टर्म। तो एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे कर रखा है ऑलरेडी, जो नंबर्स दे रखे हैं ज्योमेट्रिक मीन के 5 नंबर्स दे रखे हैं 10 15 25 20 12 एंड 20 दे रखा है, और उसके डिफरेंट वेटेज दे रखे हैं 2 3 5 2 है। ओके, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है वेट नंबर फिफ्थ नंबर का। वे क्या वेटेज दे रखा है फिफ्थ नंबर को, वो हमें फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑल्सो गिवन दे रखा है यहाँ पे 18.15 दे रखा है। तो इसमें x का जो है उसकी log x की वैल्यू निकाल लेते हैं। log x की वैल्यू आपकी यहाँ निकल जाएगी। लॉग निकाल लेंगे, आपका 10 का 15 का 25 12 और 20 का हमने लॉग की वैल्यू निकाल ली, और वेटेज से इंटू कर दिया तो W log x निकल जाएगा। आपको इनका कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे x है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको x माना था क्योंकि हमें फिफ्थ नंबर का नहीं दे रखा था वेटेज, तो x माना है इसको। तो x का जब इंटू करेंगे तो 1.3010 x होगा। तो जब इसको टोटल करेंगे तो 14.6762 प्लस 1.3010 x आएगा, और सेम यहाँ पे वेटेज का प्लस करेंगे तो 12 प्लस x आ रहा है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला लगता है वेटेज का वही हम लगाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा W log x अपॉन सिग्मा W। तो यहाँ पे 18.15 इक्वल टू एंटी लॉग आपकी जो वैल्यूज होंगी एक्स के फॉर्म में आ जाएंगी। एंटी लॉग कन्वर्ट होके आपका यहीं पे लॉग में टर्म में चला जाएगा। तो लॉग 18.15 की वैल्यू 1.2343 होगी, फिर 12x से इंटू करेंगे यहाँ पे और इसको इक्वेशन, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 2 हो जाएगी जब आप मैथमेटिकल थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ द 2। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल तरीका है टू आइडेंटिफाई था। जब हमें ये ऑल्सो मेंशन होता है अर्थमेटिक मीन में भी, जब हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है या हो सकता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग हो, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो फॉर्मूला ही आइडेंटिफाई करते हैं। What is the major difference between a geometric mean and an arithmetic mean? Arithmetic mean identify a found adding all the numbers in a given set divided by the number of the data point in set। उसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जब भी अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, जो भी हम मीन निकालते हैं, जो भी हम सेंटर पॉइंट निकालते हैं, उसमें सारे जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको हम ऐड करते हैं, देन इज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ जो भी हमें ऑब्जर्वेशन हमें दिए होते हैं वो करते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ द कैलकुलेशन मेजरमेंट ऑफ द सेंटर टेंडेंसी इन ज्योमेट्रिक मीन टर्म, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करते हैं ऑल द नंबर्स, और उसका nth रूट निकालते हैं जितने भी नंबर ऑफ हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। तो ये भी एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है कि 4 आपके नंबर्स हैं जिनका हमें स्क्वायर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो हम कैसे निकाल रहे हैं, सबका इंटू कर रहे हैं, फोर्थ रूट निकाल रहे हैं, तो हमारी वैल्यू जो आ रही है वो 11.13 आ रही है। और यहाँ पे जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला है उसमें आपकी मीन की वैल्यू 12.5 आ रही है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। अगर मेरिट्स एंड डिमेरिट की बात करें जाए, इट इज रिजल्टली डिफाइन होता है, बहुत क्लियरली डिफाइन होता है। ज्योमेट्रिक मीन भी सारे बेस जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे होता है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉलो होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड मच एज फ्लक्चुएशन ऑफ द सैम्पलिंग। अगर कोई भी नंबर्स की फ्लक्चुएशन होती है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। और यहाँ पे इट गिव्स कंपेरेटली मोर वेट्स टू स्मॉल आइटम्स, यहाँ पे थोड़ा स्मॉल आइटम को वेटेज मिलती है।
अगर डिमेरिट्स की बात करें तो बिकॉज इट्स abstract mathematical character geometric mean is not easy to understand and to calculate for non mathematical students, क्योंकि लॉग की वैल्यू निकालना, एंटी लॉग की वैल्यू निकालना तो टफ हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी होती है, तो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाती है, जबकि नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं हो पाता कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक मीन। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, डिमेरिट एक ये भी है कि जब एक ऑब्जर्वेशन अगर जीरो होता है तो जो भी ज्योमेट्रिक मीन होता है वो जीरो हो जाता है। कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर एक भी ऑब्जर्वेशन इन द टर्म ऑफ द जीरो है तो सारे ऑब्जर्वेशन जीरो हो जाएंगे। एंड इफ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज निगेटिव, तो आप जो भी अगर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन निगेटिव होता है तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो उसका इमेजिनरी जो भी एक रिफ्लेक्ट होता है वो अदर आइटम से ही पड़ता है। मतलब निगेटिव है तो निगेटिविटी ही उसके अंदर आएगी, एंड हाउ मच इज द पॉजिटिव, जितनी भी वैल्यू पॉजिटिव होती है उस पर कोई उसकी वेटेज उसका मतलब नहीं रह जाता है। सो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन जो यूज़ किया जाता है वो पॉपुलेशन ग्रोथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, फाइंड करने के लिए आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो इंडेक्स नंबर बनता है उसमें जो मीन हम निकालते हैं वो हम ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू ही निकालते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिक मीन, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को, कैसे हम लॉग की टेबल से आइडेंटिफाई करते हैं, एंटी लॉग टेबल निकालते हैं, एंड वेट व्हाट इज द वेटेज ज्योमेट्रिक मीन। तो ये ऑल ओवर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन हो गया। इसके बाद जो मेन है वो हमारा सेकंड जो है वो हमारा हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इन द टर्म अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज अ पार्ट ऑफ द हार्मोनिक मीन भी होता है। तो इंडिविजुअल जो हमारा फॉर्मूला होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ द अर्थमेटिक मीन, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करके डिवाइड करते हैं नंबर बाई ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल की बात हो रही है, इसलिए ये पलट जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर होंगे एंड जो एडिंग होगी, जो ऐड होंगे ऑब्जर्वेशन वो आपके डिनोमीटर में आ जाएगा। डिनोमीटर में आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिनोमीटर में आपका सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन का वो एन अपॉन सिग्मा अपॉन अपॉन एक्स हो जाता है। इन द टर्म ऑफ डिस्क्रीट सीरीज ये फॉर्मूला चेंज होके एन एन यहाँ पे सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ अपॉन एक्स हो जाएगा। और यही चीज कॉन्टिन्यूस डेटा में भी चेंज होगी, सिग्मा एफ अपॉन एम। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इट इज वेरी इजी। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में आपको जो वैल्यू दे रखी है 1, 15, 10, 20, 30, 45 है, तो जब इसका हार्मोनिक में अगर कैलकुलेट करना है तो 1 को हम क्या करेंगे, 1/1 कर देंगे, दैट इज वैल्यू 1। जब 15 है तो रेसिप्रोकल कर देंगे 1/15, 0 पॉइंट आपका 0.066 आएगा। 1/10 करेंगे 0.1 आ जाएगा। 1/20 करेंगे 0.05 आएगा। 1/30 करेंगे 0.033 आएगा। 1/45 करेंगे 0.02222 आएगा। तो सिग्मा 1/x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.2721। और हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो 1/सिग्मा 1/x होता है। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल के आपकी जो मीन हार्मोनिक मीन आएगा दैट इज 4.72 आएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, तो एक्स अपॉन एफ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सीधे सीधे एक्स अपॉन एफ, एफ अपॉन एक्स कर देते हैं। जब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, ऑब्जर्वेशन दे रखा होता है, तो हम एफ अपॉन एक्स कर देते हैं। एफ अपॉन एक्स करने पे तो 8/10 की वैल्यू जो होगी वो 0.80 हो जाएगी, 12/20 की वैल्यू 0.60 हो जाएगी। इसी तरह से एफ एक्स की सम आएगा वो 2.29 आएगा। ठीक है, जब हार्मोनिक मीन निकाला जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ अपॉन एक्स। तो सिग्मा एफ की वैल्यू 50 है एंड सिग्मा एफ अपॉन एक्स की वैल्यू 2.29 है। दैट वैल्यू इज 21.83। अगर इसी तरह से हम कॉन्टिन्यूस की डेटा की बात करें तो कॉन्टिन्यूस में मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड वैल्यू आपको निकालना मैंने बताया था, जो भी हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे रखे होते हैं उन दोनों का प्लस कर लेते हैं, अपॉन 2 कर लेते हैं। तो 0 से 10 के बीच का मिड पॉइंट 5 है, 15, 25, 35, 45। दैट इज अ मिड वैल्यू थ्रू अस 0 to 50 के बीच में हमारी आ रही है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो भी मिड वैल्यू दे रखी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी तो फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं हम एम से, तो एफ अपॉन एम हो जाएगा। एफ अपॉन एम जैसे ही करेंगे तो 20/5 का मतलब 4 हो जाएगा, 30/15 का मतलब 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, 70/35 2 आ जाएगा, 180/45 से 4 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी 14। सिंपल सा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ अपॉन एम। तो 350/14 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन हमें कॉन्टिन्यूस में भी मिल जाएगा। तो जो तीन तरह के डेटा की हम बात करते हैं, फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकंड इज डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो ये यहाँ पे हार्मोनिक मीन की बात हो गई।
अगर इसकी बात करें, मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें, तो हार्मोनिक मीन जो रिजिडली डिफाइन होता है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है बहुत स्मॉल आइटम्स को। और यहाँ पे जो स्मॉल आइटम्स होते हैं उसको वेटेज काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर डीमेरिट्स की बात करें तो इतना सिंपल नहीं होता समझना, डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट होता है। अगर बड़ी वैल्यू मिलती है हमें तो उसका रेसिप्रोकल निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लार्ज वेट को यहाँ स्मॉलेस्ट आइटम, इट गिव लार्ज वेट टू स्मॉलेस्ट आइटम, क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल आइटम को वेटेज ज़्यादा देते हैं, तो ये भी एक निगेटिव टर्म है। इट कैन बी इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइटम्स। कभी भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि दोनों अगर बहुत पॉजिटिव नेगेटिव आइटम्स तो कंप्यूट करना मुश्किल हो जाता है, और एक दो ज़्यादा जीरो हैं तो एक से ज़्यादा जीरो है तब भी इशू रहते हैं। तो जो बेसिकली यूज़ है इसका एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट, एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज प्राइस निकालना, तो इन सब में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जो मेन कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें एवरेज स्पीड निकालते हैं, ये तो इस टर्म से इसमें यहाँ पे निकाला जाता है। So all this is all about the harmonic mean. Okay, thank you guys for this lecture. Hopefully you all understand what I mention here about the geometric mean and a harmonic mean. So my next topic is median and mode. So revise all these things through these slides. Thank you. If you have any problems, kindly comment in my chat box. Thank you so much.